Okay, solve these questions. Done. नहीं सर, बाकी है थोड़ा। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी है सर। Okay, let's start. Find principal value of tan x minus cot x is equal to cosec x. तो चाहो तो सब आप सर cos में स्क्वायर कर सकते हैं ना दोनों को, दोनों साइड, तो कोसेक स्क्वायर का टर्म हट जाएगा, स्क्वायर तो फिर करोगे। डायरेक्ट टेन का ही बाकी रहेगा सर टर्म। लास्ट टाइम एक स्क्वायर किए थे ना कुछ क्वेश्चन। हाँ सर, की करवाया तो सर अपने डायरेक्ट, बाद में बता भी था कि डायरेक्ट जनरल इक्वेशन कैसे
को स्क्वायर। तो रेस्ट्रिक्शन था ना, स्क्वायर नहीं करेंगे। अरे हाँ हाँ? हाँ हाँ सर। तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, नहीं तो सबको कॉट में कन्वर्ट करो, वो एक होगा। साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो दिस बिकम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस cos x upon sin x is equal to 1 upon sin x. So for that one आपका कंडीशन रहेगा sin x is not equal to 0, cos x is not equal to 0. 0 आ जाएगा तो देन वो सोल्यूशन में नहीं आएगा, तो 3π/2 का भी सोल्यूशन हो नहीं पाएगा। फिर 3π/2 के लिए tan अनडिफाइंड होगा। हाँ सर बाद में आ रहा है। सो 3π/2 नॉट योर सोल्यूशन आता। तो ये देन यू गेट sin square x minus cos square x, sin square x minus cos square x upon sin x sin x cos x is equal to 1 upon sin sin x. The denominator term you can cancel. So sin square x minus cos square x is equal to cos x। cos x. तो सबको cos में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इसमें cos का लिनियर रहा, क्वाड्रेटिक भी रहा। तो cos में कन्वर्ट करेंगे तो sin square x को क्या लिखेंगे? 1 minus 1 minus 1 cos minus square cos x square minus x. cos square x equal to okay cos x. That implies 2 cos square x plus cos x minus 1 equal to 0. So multiplication minus 2, sum is the प्लस 1, तो क्या होगा? 2 cos x minus 1 into cos x plus 1, करेक्ट? हाँ sir। दैट इम्प्लाइज आपका cos x इज इक्वल टू हाफ होगा और cos x इक्वल टू माइनस 1 होगा, बट cos x माइनस 1 हो नहीं सकता, क्यों? 0 हो जाएगा ना। 0. तो फिर sin x 0 हो जाएगा ना। हाँ, if cos x माइनस 1 तो sin x 0 हो जाएगा, ठीक है? दैट्स व्हाई दिस इज नॉट बिलोंग टू योर सॉल्यूशन। तो cos x इज इक्वल टू हाफ, क्वेश्चन क्या पूछा था? प्रिंसिपल वैल्यू, तो π/3 प्रिंसिपल वैल्यू होगा समझा? हाँ सर. And general solution of 2 sin square x plus sin square 2x is equal to 2. That implies इधर ले आओ, 2 sin square x minus 2 क्या होगा? cos square 2 cos माइनस square। माइनस 2 cos square x, अच्छा माइनस, हाँ सर। और ये sin square 2x कितना होता है? 4 sin square x cos square x। 4 sin square x cos square x minus 2 cos square x became 0. square 0।
हाँ सर। 2 cos square x common equal into 2 sin square x minus 1 0. sin x is equal to तो plus cos square x equal 0 और sin square x is equal to 1 by 2. 2। ओके, हाँ सर। तो लास्ट टाइम बताया था आप लीनियर मत करने के लिए, हाँ बताया इधर था। से डायरेक्ट करते हैं। दिस वन यू कैन मेक 1 by root 2 का और square which is sin square 5/4 sin square theta is equal to sin square alpha. n pi plus minus alpha। So x is equal to n pi plus minus 5 by 4. n belongs to integer. Cos 0, cos theta 0, theta क्या होता है? pi/2 a/2। जनरल सोल्यूशन 2n plus 1 pi/2 और pi by 2, 12 plus 1 into pi by 2, where all n belongs to integer. ये जिसने बहुत सारे ये आंसर आया था, दिस वन करेक्ट, बट आप कहीं ना कहीं cos को कैंसिल किए, आपको एक ही सोल्यूशन मिला. combined solution is the correct, but if you write only this one, wrong. only this one, वो भी wrong. ये जिसको मिला था, बहुत सारे को ये मिला, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कैंसिल किए. So there was a restriction not to cancel both the sides unless otherwise non-zero quantity. बताया था ना कि नहीं? हाँ सर। तो combined correct, individual गलत है. Find general solution of tan pi by 4 plus x plus tan pi by 4 minus x is equal to 2. इसमें डालो tan a plus b plus tan a minus b, क्या होता है? tan a plus tan b Plus upon 1 plus tan x upon 1 minus tan x। ये होगा 1 1 minus tan x upon 1 plus tan x is equal to 2. तो एलसीएम हो गया 1 1 minus minus tan tan square x। square x, न्यूमरेटर होगा a plus b whole square plus a minus b whole square, हाँ सर। that is 2 times of a square plus b square। b square equal to 2. 2 to cancel. ठीक है, तो चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, then 1 plus tan square x is equal to 1 minus tan square x, then tan square x 0 होगा, means tan x भी 0 होगा. tan x कहाँ पे 0 होता है? 0 जनरल 0 सोल्यूशन x equals to 0 x एक्सिस, x एक्सिस मतलब n pi. n pi। हाँ सर, जनरल सॉल्यूशन n pi सर। n belongs to integer. And principal value of sec of pi by 4 plus x plus sec pi by 4 minus x. इसको क्या करेंगे? sec theta cos equal अगर changes कट 1 by 1 by cos theta plus 1 upon cos pi by 4 minus x is equal to 2 root 2. न्यूमरेटर हो जाएगा
cos पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 माइनस माइनस एक्स। डिनोमिनेटर होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। और आ, उल्टा होगा, हाँ? cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर है। cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a, ये भी हो सकता है, ठीक है। इज इक्वल टू 2√2। ये दोनों से कौन सा देखेंगे, मतलब सर cos हम, स्क्वायर x वाला, क्योंकि वो cos x हाँ, है। जो रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से जाएंगे। इसमें cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 cos a cos b। 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b, तो न्यूमरेटर cos में आ रहा है, तो इसलिए हाँ हम सर। इसको cos cos x रखेंगे, इसके साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/2, चलेगा, है ना। साइन साइन स्क्वायर पाई बाय 4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हुआ, कैंसिल्ड। दैट इंप्लाइज cos x, ये हो गया 1/√2, √2 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, नो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 कर देता हूँ, चलेगा। दैट इंप्लाइज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x minus 1 equal to 0, multiplication minus 2, sum with the minus 1, कितना होगा 2 cos x plus 1 into cos x minus 1 equal to 0। that means cos x is equal to minus half और cos x is equal to minus 1। क्या पूछा था, प्रिंसिपल वैल्यू। माइनस हाफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है, मैंने देना चाहिए, इंटरवल देना चाहिए। कौन सा इंटरवल आप रखना चाहोगे, 0 to 2 पाई और 0 to 2 pi। 0 to 2 पाई, ठीक है। कंसीडर प्रिंसिपल वैल्यू इन द इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई, 2 पाई पे ओपन रहेगा, 0 पे क्लोज। तो cos x माइनस हाफ कहाँ पे होगा, 120। सर 120, 120। तो x होगा 2 पाई बाय 3, cos x माइनस 1 क्या होगा, सर माइनस 5/2। नहीं एक सेकंड। सर +1 आएगा ना। यस सर, +1 हाँ हाँ, आएगा। प्लस प्लस 1 कहाँ पे होगा, 0 E1 पाई ना, सर 0। E1 पाई।0 प्रिंसिपल पे वैल्यू 0, तो दिस टू आर सॉल्यूशंस, ओके। नहीं, इफ यू कंसीडर x बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई से लेके प्लस पाई, ये इंटरवल कंसीडर करोगे तो एक केस में क्या होगा, 5/3 सर। वो भी 2 पाई बाय 3 होगा, पाई बाय 3 होगा। कॉस नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड और सेकंड। हाँ। सेकंड। सेकेंड, 2 पाई बाय 3 होगा, एंड ये 0 भी होगा, दोनों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके सर। आंसर आया था 0, इसका तो फिर कैंसिल कहीं ना कहीं की। फिर एक सोल्यूशन कहाँ चला जाता है, कैंसिल कुछ ना कुछ किए होंगे, जिसको ओनली 0 मिला। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस इंटरवल।
और ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। सर ये बाकी है सर। ये तो फैक्टराइज हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन 6 हमें हाँ तो सर। -7 कितना होगा 3 sin square x minus 6 sin x minus sin x plus 2 equal to 0. That implies 3 sin x minus 1 into sin x minus 2 is equal to 0. तो sin x equal to 1/3 और sin x is equal to 2। तो 2 तो हो नहीं पाएगा, रेंज के बाहर है। 1/3 आपका इंटरवल कितना दिया गया, -3 से लेके 4 के अंदर, -3 क्लोज, ये आपका -3 और पाई इधर रहता है। -3 से लेके -2 -2 से लेके -π 0 2 देन आपका 4 समझा। फिर इंटरवल नहीं समझ रहा, बस समझ सकते। -3 यहाँ से स्टार्ट किया, -3 पर क्लोज, -3 से लेके -2 क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, तो आपका एंगल ऐसा ऐसा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। सर हम लोग को जब तक वो -2 पाई माइनस पाई 0 ये -2 फिर 0, ये 2 देन 4 पर ओपन, क्लोज नहीं है। समझा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा इजी रहता है कि आपको इतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है। अब sin x sin थीटा हाफ, सॉरी 1/3 कहाँ पे होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ? तो सर The जितनी number बार of वो घूम के intersection point between circle Yes. and straight line and the number of solutions. 6। So there are 6 solutions. अरे वैसे वो समझा ही नहीं था मैंने। वो पूछ रहा है ना -3 है, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एवरी 2 इंटरवल में कितना आ रहा है, 2 सॉल्यूशंस आ रहा है। हाँ 2 2। तो ठीक है, वैसे तो 0 to 2 आपका 2 मिलेगा, फिर 2 से लेके 4 और 2 4 हो गया, फिर -2 से 0 और 2 6। आपको देखना पड़ेगा कि -3 से लेके -2 ऊपर से जा रहा है कि नीचे से जा रहा है। ओके सर। नीचे ठीक है, से आपका नीचे से जाएगा, नीचे से ये जा रहा है, नीचे से जाएगा तो आपका सोल्यूशन नहीं है, ऊपर जाएगा तो और 2 सोल्यूशन आ जाएंगे। तो ऐसे करोगे तो आपको ये रहेगा, नहीं अदरवाइज आपको ये काउंट करना पड़ेगा। ऐसा करना पड़ेगा, sin x is equal to 1/3, let us take sin alpha। now sin theta equal to sin alpha, तो अल्फा आपका कितना हो जाएगा, sin इनवर्स 1/3। ठीक है, तो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा क्या होगा, n पाई प्लस -1 टू दी पर n अल्फा। ठीक है, तो अभी n बिलोंग्स टू इंटीजर, n की जगह 0 डालो, क्या मिलेगा, एक अल्फा होगा, एक पाई माइनस अल्फा होगा, एक 2 पाई प्लस अल्फा होगा, एक 3 पाई माइनस अल्फा होगा, एक 4 पाई प्लस अल्फा। ये मोर देन 4 पाई हो गया। ये जो एंगल होगा ना, ये एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, ये 4 पाई प्लस अल्फा मतलब मोर देन 4 पाई हुआ, देन नेगेटिव करना पड़ेगा, -π माइनस अल्फा -2 पाई, n की जगह -1 वैसे सब कुछ डालना पड़ेगा ना, -3 तक। -1 डाला ना, -π माइनस अल्फा, 2 डाला तो -2 डाला तो -2 प्लस अल्फा होगा, देन -3 पाई माइनस अल्फा, -3 पाई माइनस अल्फा लेस देन -3 पाई हो गया। हाँ ये नहीं होगा, तो आपका
कितना सोल्यूशन? 1 2 3 4। अच्छा समझा सर। ऐसे काउंट करोगे रैंडम सॉल्यूशन से भी कर सकते हो। नहीं तो हाँ सर, सर्कल इस घुमा ग्राफ के से ही करो। कर लेंगे, वो सब छोड़ो। समझा कैसे हुआ? हाँ सर, समझा। इससे वो आपको 1 2 सॉल्यूशंस कैसे मिला? ये सर -3 पाई से 4 पाई मैंने बस एक टर्न मार लिया था। वो सोचा नहीं कि -2 पाई आएगा -3 पाई के बाद, तो वो काउंटिंग मिस्टेक कर। एक सेकंड, अगर 2 पाई वो सब नहीं काउंट किया तो 0 आना चाहिए ना, क्योंकि तू सिर्फ 3 पाई से 4 पाई ले गया। नहीं, मैंने पूरा टर्न लिया ना, वही तो गलती की। एक टर्न पूरा लिया, लेकिन अरे वो -3 पाई से 4 पाई से चालू किया, मैं दूसरे साइड से चालू करके लेकर आया। उल्टा ही जा रहा था मैं। और अच्छा फिर एक ही टर्न लिया मैंने, जहाँ से सर का 4 पाई है वहां से बस एक टर्न लेके सीधा -3 पाई पे। उसको प्रॉपरली घुमाओगे, नहीं तो फिर नहीं होगा। सर सर वही मेरे तो को कह भी रहा हूँ, तो एक समझा टर्न ही नहीं, लिया मैंने मैंने। सारी बार घुमाया। तो सर वो पूरा एकदम लेंथ तक स्ट्रेच करना पड़ता है ना सर, जहाँ तक पेयर रहेगा। Solve these questions. Anything else? Okay. थर्ड का किसी को नहीं मिला। Find general solution of cos 3x or tan 5x that you can write sin 5x upon cos 5x is equal to sin 7x. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बट बिफोर दैट यू हैव टू कीप कंडीशन।
cos 5x is not equal to 0. That implies sin 5x into cos 3x is the sin 7x into cos 5x. Multiply 2 both the sides. So 2 sin A cos B. 2 sin A cos B. Sin of A plus B plus sin of A minus B. Sin of A plus B मतलब 8x plus sin A minus B 2x. Right side. Sin of A plus B 12x plus sin of A minus B 2x. ठीक है? हाँ सर. Sin 2x cancelled. That implies sin 12x, not 2x here. Oh, sorry. 2x cancelled. Sin 12x minus sin 8x is equal to 0. Now use sin C minus sin D. What? 2 Cos plus of C plus D by 2 sir. 10x into Oh, sin C minus D by 2 sin 2x. है ना? That implies cos of 10x equal to 0 होगा और sin 2x is equal to 0 होगा. इसका क्या पूछा था? जनरल सोल्यूशन. cos 10x 0. cos कब 0 होता है? 90 degrees pi by 2. जनरल तो सोल्यूशन. अरे जनरल 2n plus 1 pi by 2. 2n plus 1 into pi by 2. pi by y 2 एक्सिस हाँ. पर होता है. साइन कहाँ पे 0 होता है? Zero pi. n N pi. n pi. pi. That implies आपका x होगा n pi by 2 और यहाँ पे x होगा 2n plus 1 into pi by 20. करेक्ट? अच्छा, सर हमने cos of 5x के लिए लिखा था cos 10x. ये चेक करना पड़ेगा. इधर 5x क्या होगा? 10x. 2n plus 1 into pi by 4. हाँ ऑड सर. पाई बाय 4. ऑड पाई बाय 4 पे कितना होता है? ऑड पाई बाय 4 मतलब आपको सिर्फ 0 to 2 पाई के अंदर देखना पड़ेगा. एक पाई बाय 4 होगा, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4. यहाँ पे नहीं मिला मतलब आगे कुछ नहीं होगा. ठीक है? 0 to 2 पाई के अंदर आपका अनडिफाइंड हो गया तो आगे होगा, वही इंटरवल में होगा. नहीं, इसके 0 to 2 पाई के अंदर नहीं हुआ, आगे कभी नहीं होगा. ठीक है? ओके तो सर. इसमें cos 5x कभी 0 नहीं होगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन. ओके, दैट इंप्लाइज आपका cos 5x इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज योर सॉल्यूशन. अच्छा, व्हाट अबाउट 5x? ना 5n 5 5 pi by n 2. pi by 2. सर ये 0 नहीं होगा. तो नहीं 0 होगा. इफ n इज एन ऑड, सपोज n ऑड हुआ तो क्या होगा? ऑड इंटू ऑड, ऑड रहेगा हाँ. हाँ तो ऑड सर. पाई बाय 2 आ जाएगा. सर odd into odd even होता है ना. हाँ 3 into 7 क्या होता है? सॉरी सेम से मल्टीप्लाई किया तो होगा. सॉरी. ऑड इंटू ऑड ऑड होता है तो ये हो जाएगा ऑड पाई बाय 2. ठीक है? हाँ सर.
ऑड पाई बाय 2 होगा तो कॉस क्या हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा. इफ n इज एन ऑड देन cos of 5x is equal to 0 होगा. So this is not your solution. If n is an even होगा तो 2 मतलब ये कैंसिल हो जाएगा. n is an even मतलब let n equal to 2k. तो आपका 5x क्या हो जाएगा? 5 into 2k pi by 2. तो 5k 5 pi सॉरी 5k pi मतलब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीप्लीकेशन ऑफ पाई, है ना? हाँ. तो एन पाई इट इज लाइक एन पाई में कॉस क्या होता है? 1. 1 या फिर -1। +1 होगा नहीं तो -1 होगा. इसका मतलब हाँ. इधर कॉस आपका 0 कभी नहीं होगा. सो दिस इज योर सोल्यूशन. तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर आपका? n की जगह इवन होगा. तो हेंस x इज इक्वल टू n पाई बाय 2 for n is an even. दैट इज n के जगह 2k लिख दिया तो k पाई होगा आपका आंसर. ये एक आंसर होगा. और एक आंसर हुआ x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 20. तो आंसर मिला वेयर k बिलोंग्स टू integer n also belongs to integer. There are two set of solutions. इसी में मिला था odd pi by 2. odd pi by 2 itself cos 0 हो जाएगा. नहीं होगा. 36 डिग्री कहाँ से आया? सर मैंने अच्छा cos पाई बाय 2. 3x अच्छा को पाई बाय 20. पाई बाय 20 भी 30 नहीं होता है. 9 डिग्री होता है. सर मैंने cos 3x को 5x माइनस 2 लिखा, sin 7x को 5x प्लस 2 लिखा, तो फिर tan x को मैंने sin 5x बाय cos 5x किया, तो फिर कट हो रहा था, तो फिर वैसे करके मुझे याद है. नहीं हो पाएगा. करते हैं. अब cos 3x को आपको 5x 5x माइनस माइनस 2 ओके. tan को sin बाय cos की कि नहीं? एक ही है ना? हाँ सर. तो वो कंडीशन तो आपको रखे नहीं होगे. ठीक है. इसके वजह से आपका एक जो सोल्यूशन आया वो नहीं हो रहा है. ओके. इसके बाद क्या किए? तो फिर ब्रैकेट खोल दिए, तो फिर cos 5x cos 2x वो सब है. मतलब cos a माइनस b डाला. हाँ सर, cos a माइनस b. तो cos x cos 2x sin 5x प्लस sin 5x sin 2x sin नहीं स्क्वायर सर, 5x. एक्चुअली सर sin 5x को राइट साइड पे ले गया था और cos 5x को लेफ्ट में ही रखा था, तो फिर अंडर. cos 5x कैंसिल होके वो tan x tan कर रहा था. क्या के? और वो जो तो cos cos 5x है 5x वो को डिवाइड LHS के किया. डिनोमिनेटर में था. हम्म. आप डिनोमिनेटर ही रखे है ना? हाँ सर, cos 5x को डिनोमिनेटर रखा और sin 5x को राइट साइड का डिनोमिनेटर किया. ओके ओके समझ. तो cos 5x माइनस 2x अपॉन cos 5x इज इक्वल टू sin 5x प्लस 2x अपॉन sin 5x. एक है. Okay. हाँ सर. तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस sin 5x tan 5 क्या किया? tan किया क्या?
कि नहीं? हाँ सर, tan की है। Okay. sin a cos b cos 2x होगा प्लस cot 5x sin 2x, then इसके बाद क्या किया? एक मिस्टेक कर दी मैंने, मैं समझ गया। Find principal value of sin 2x plus sin 4x is equal to sin 3x. तो इसमें डालो sin c plus sin d, कितना होगा? 2 times cos of c plus d by 2. 2 sin c plus d by 2 2 sin into 3x cos into cos c minus cos d by x. 2, ठीक है ना? माइनस 2 sin 3x 0. ये रूल मैंने बताया था कि नहीं बताया था? कैंसिल करना नहीं है, लास्ट टाइम बताया था कि नहीं बताया था? ये कौन सर सा नो? रूल अभी सर? पिछले क्वेश्चन में ही तो हुआ था, हम लोग ने हाँ कैंसिल सर, कर वो दिया आपने था बोला साइन कट स्क्वायर नहीं करने 2x का वाला दो प्रॉब्लम। सोल्यूशन आ सकते हैं। आप ऐसे रखोगे 2 sin 3x into cos x is equal to 2 sin 3x, sin 3x को कैंसिल कर दोगे तो ये xy is equal to yz implies what? y equals to 0 and x minus z equals to 0. Yes. ऐसा नहीं कि y कैंसिल करोगे x equal to z होगा। दिस इज रॉन्ग, ये ऑलरेडी मैंने Yes, पहले sir. से बताया था, ठीक है? हाँ, 2x is equal to 2y, that implies x is equal to y. 2 कैंसिल होता है, हाँ but सर. you if y equal to 0, that does not mean x equal to z होगा। सपोज y की जगह 0 रखा, x की जगह 3 रखा, 3 into 10 भी हो सकता है ना, LHS equal to RHS, that does not mean 3 equal to 10। तो आप डोंट कैंसिल, मतलब डोंट कैंसिल नहीं, ट्राई टू अवॉइड कैंसिलिंग बोथ दी साइड्स। आप कैंसिल करोगे नहीं, कब करोगे? सर कोई इंटीजर एक दिया वैल्यू रहे तो नॉन कर होगा। सकते हैं। जब इंटीजर पता है नहीं, कि वो वेरिएबल जीरो नहीं रहेगा देगा। तो हाँ, हाँ। if you know given quantity is the non-zero quantity for any value of x, then you can cancel। जैसे कि sec x into tan x is equal to sec x into sin x। तो इसमें आप लिख सकते हो sec x, can I cancel sec x here? अभी Can I cancel sec x here? हाँ कर सर, सकते हो। Yes, sir. sec x का रेंज क्या होता है? हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू -1। sec x का रेंज क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू -∞ to -1, -1। यूनियन 1 to 1 to इन्फिनिटी। ये कभी 0 हो हाँ, सकता है क्या? नहीं सर. नहीं ना, हो तो तो नहीं यू कैन सकता। कैंसिल।
अच्छा sec x never 0, so you can cancel. Here tan हाँ x सर is the sin x upon cos x is equal to sin x. Can I cancel sin x? नहीं नो सर. इधर आप कैंसिल कर नहीं पाओगे. If you cancel sin x, then it is wrong. ये करेक्ट. ओके, तो इसमें क्या करोगे, आप कैंसिल कर दोगे तो कोई sin x कॉमन लेके करेगा 1 माइनस cos x इज माइनस 1 इक्वल टू 0. इसको लेफ्ट साइड ले लो, sin x कॉमन ले लो, इंप्लाई sin x इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो cos x इक्वल टू 1 होगा. तो आपको दो सॉल्यूशन मिल रहा है ना, दो सेट ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है. हाँ एक सर. सेट में कितने सॉल्यूशंस रहते हैं? एक जनरल सेट में, जनरल इक्वेशन में तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं एक सेट? जैसे ये सेट में हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? इनफाइनाइट ना सर. इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. आप कैंसिल कर दोगे तो इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यू आर गोइंग टू मिस. ठीक है, तो इसलिए try to avoid squaring, sorry, cancelling both these sets. If you sure about non-zero quantity, then you can cancel. Suppose 1 plus tan x upon sin x is equal to 3 cot x upon sin x. Can I cancel sin x? किधर सर? ये केस में हाँ कर सकते हो. कर सकते हैं. डिनोमिनेटर में sin जीरो x तो नहीं होएगा ना. डिनोमिनेटर का भी जीरो नहीं होता है, हाँ तो डिनोमिनेटर कुछ भी रहेगा आप कैंसिल कर दो. बोथ साइड डिनोमिनेटर में कोई सिमिलर मतलब सेम टर्म आ रहा है, सो यू कैन कैंसिल. न्यूमरेटर में कैंसिल मत करना. करने हाँ से सर, पहले पर आपको चेक करना पड़ता है कि वेदर इट इज क्वांटिटी जीरो क्वांटिटी और नॉन जीरो क्वांटिटी. जीरो सर. क्वांटिटी आएगा तो डोंट कैंसिल, नॉन जीरो होगा तो कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, इसलिए आप इसको sin 3x कैंसिल कर नहीं पाओगे. sin 3x कैंसिल करो, sin 3x जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है सर. हो सकता है, सो डोंट कैंसिल sin 3x. ऐसे बोथ साइड रख के कैंसिल मत करना. समझा? हाँ सर. तो इसमें रहा 2 sin, तो you have to take common 2 sin 3x common, then sin cos x minus 1 equal to 0. That implies sin 3x 0 हो और x cos इक्वल्स टू x is equal to 1. क्वेश्चन क्या पूछा था? जनरल नहीं सर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू. प्रिंसिपल वैल्यू तो x क्या होगा? 3x क्या होगा? 0 होगा, x 0. x 0 होगा. और सर सेकंड वाले cos के लिए x कहाँ पे 1 आता है? 0 पे 0. तो दोनों के लिए एक ही सोल्यूशन बना, सिंगल सर्किट. x इक्वल टू 0. प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, आप सब एन पाई में लिख रहे हो, क्या करोगे? सर अभी हाँ सर वो तो दिखता है. सर वो सर इतने सारे बच्चों ने आंसर कर दिया, मेरे को लगा कि वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है, सही में जनरल वैल्यू ही आप पूछ रहे थे. मेरे को लगा कि मैंने मिस कर दिया लेक्चर. प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रिंसिपल सर वैल्यू छोड़ सब दो, जनरल सर छोड़ दो. फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ cos x, cos 2x, cos 3x is the 1/4 where x is the minus 3 pi by 2 से लेके 5 pi by 2. ओके, इसको पहले हम प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट करेंगे, फिर सम को प्रोडक्ट कन्वर्ट करेंगे. ये रिवर्स वे में होता है, बट हमारा कोशिश रहेगा कि हाउ टू मेक राइट साइड जीरो. राइट साइड को कैसे जीरो किया जाएगा? क्यों सर? ठीक है, राइट साइड में जीरो आ जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ ना cos x इक्वल 0 और cos 2x 0 और cos 3x 0. बट 1/4 पे तो कुछ डिसाइड कर नहीं पाऊंगा ना. यस तो इसको पहले ट्राई करो कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है ना, प्रोडक्ट फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे
0 सर नहीं मेरे को बस ये पूछना था, ये जो 1/4 है कम सर, उसको हम लोग कॉस में ये cos 60 का जैसे n पाई प्लस कॉमन वैल्यू देकर सॉल्व नहीं कर सकता? मतलब एक तरफ जनरल सोल्यूशन ही बना दिया वैसे करके। कौन सा इसमें? सर 1/4 को हाफ का स्क्वायर लिख सकता है ना, और मतलब माइनस हाँ प्लस माइनस हाफ का स्क्वायर लिख दिया, तो फिर RHS को हमने जनरल सोल्यूशन बना दिया और उस हिसाब से LHS को निकाल रहा और फिर उसमें सोल्यूशंस ढूंढ रहा, वैसे पूछ रहा था। ऐसे कैसे होगा? आपको cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा फॉर्मेट आना चाहिए, नहीं तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा फॉर्मेट आना चाहिए। ये 3 3 के साथ कैसे करोगे? ठीक है, चेक करो कैसे होगा। तो 4 इंटू cos x cos 2x cos 3x इज इक्वल टू 1, करेक्ट? तो इसको 2 इंटू 2 cos x cos 3x कर देता हूँ इंटू cos 2x। अब चाहो तो कोई भी दो रख सकते हो, कोई दिक्कत, यू विल गेट सेम आंसर। ये दोनों को भी रख सकते हो, ये दोनों को भी कंबाइन कर सकते हो। मैंने x के साथ 3x रखा क्योंकि ये 2x के साथ मैच करेगा। इसमें डालो 2 cos a cos b, कितना होगा? 2 cos a cos b सर cos cos of a a plus b plus b minus cos a minus b। माइनस नहीं सर cos प्लस ना सर, हाँ प्लस, प्लस सॉरी cos सॉरी, a ये माइनस तो साइन आ cos वो a तो गया। plus माइनस b ऑलरेडी। plus cos a minus b हाँ सर। इंटू cos 2x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos 4x cos 2x प्लस 2 cos square x cos square 2x माइनस 1 बिकम 0। ठीक है, तो राइट साइड को मेरा m था कि राइट साइड को 0 कैसे किया जाए? ये क्या होता है? सर cos 4x cos 4x cos 4x, that implies 2 cos 4x into cos 2x plus cos 4x equal to 0. So cos 4x you can take common, then 2 cos 2x plus 1 0. तो cos 2x cos 4x 0 होगा और cos 2x is equal to माइनस हाफ होगा। ठीक है, अच्छा इसमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन इसमें इंक्लूड है क्या। जैसे इसका प्रीवियस में क्या हुआ, ऑल्दो यू गॉट 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर मिला, लेकिन क्या हुआ, दोनों का सॉल्यूशन सेम आ गया। ठीक है ना, तो इसमें ऐसे ही चेक करना पड़ेगा कि नहीं है सर। cos when cos 2x is equal to minus half cos 4x 0 हो सकता है क्या? नो सर, cos 2x is equal to minus half cos 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos square 2x minus 1 cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos square थीटा minus 1 ना। तो 2 cos square 2x मतलब ये 1/4 minus 1 which is not equal to 0। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं होगा, ये दोनों का सॉल्यूशन मतलब इंडिपेंडेंट कॉमन सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, अच्छा दोनों में कॉमन सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा तो फिर आपको रिड्यूस हो जाता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, तो सॉल्यूशन रिड्यूस होता है। क्या जनरल करके काउंट करोगे कि रोटेट करेंगे, मतलब कैसे करोगे? सर रोटेट कर ग्राफ ग्राफ, ये जो रेंज मैंने दिया, ये जो x दिया, इसमें x क्या है, माइनस 3π/2 से लेके 5π/2 ये ओपन ये क्लोज, तो 4x का रेंज कितना होगा? 3π/2 नहीं एक सेकंड सर,
इसमें 4 मल्टीप्लाई करो, ये होगा 6 पाई, ये होगा 10 पाई, करेक्ट। हाँ सर। अब 4x को मैं थीटा मानूंगा, इफ यू कंसीडर 4x इक्वल टू थीटा, cos थीटा कहाँ पे 0 होता है? अच्छा, 0 इसमें नहीं, पाई बाय हाँ सर, cos थीटा पाई बाय 2 पे सर। बाय 2। हाँ, तो मतलब y एक्सिस पर होता है हाँ ना। तो 0 to 2 पाई के अंदर कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2 2 सॉल्यूशंस। इसमें चेक करो हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशंस आर हियर। 8 -6 पाई से लेके 10 पाई, हाउ मेनी कंप्लीट रोटेशंस आर देयर? सर, 8 8 8 कंप्लीट रोटेशंस। ओके, जस्ट लास्ट वन थोड़ा मतलब टच नहीं करेगा, मतलब 12 पाई को टच नहीं करेगा, 10 पाई को। अदरवाइज 10 कंप्लीट रोटेशन, 1 कंप्लीट रोटेशन में 2 सॉल्यूशंस, तो 10 कंप्लीट रोटेशन 15 में कितने सॉल्यूशंस होगा? 16 सॉल्यूशंस। सर, बट लास्ट वाला टच नहीं करेगा ना। नहीं करेगा, बट उधर तो मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। 10 पाई आपका इधर है, 16 मेरा के तो साथ। सॉल्यूशन, मेरा तो सॉल्यूशन ये y एक्सिस पर आ रहा है। हाँ अरे सर, अरे सर हाँ सर टोटल 8 कंप्लीट रोटेशंस हो रहे हैं ना। हाँ, एक हाँ सर। कंप्लीट रोटेशन में आपका दो दो सॉल्यूशंस आ रहा है। हाँ, हर हर एक में 2 रोटेशन में 2 सॉल्यूशन। मिल रहा है ना। आपका ये -6 पाई इधर से स्टार्ट होगा, -6 पाई, -6 पाई से लेके -4 पाई, -4 पाई से -4 लेके -2 -2 पाई, 2 पाई से 0 लेके 0, ऐसे ना। फिर और 2 5 बार 4 घूमेगा, 6 8 10 तो ये 3 बार रोटेट कर चुका है, कितने सॉल्यूशन मिला? 6 6, और 5 बार रोटेट करेगा। 16 सपोज इधर आपका सॉल्यूशन होता, एक्स एक्सिस से ऊपर सॉल्यूशन होता, तो लास्ट वन टच नहीं कर रहा है, -1 तो एक माइनस होगा, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ 16 वो 15 हो जाएगा, हाँ सपोज एक्स एक्सिस में सॉल्यूशन आएगा। इधर तो वाई में आ रहा है, वाई में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ सर। ना। इसमें देखो, आपका x बिलोंग्स टू 2x का रेंज कितना होगा? ये 2x में 2x का रेंज कितना होगा? -3 पाई से लेके -5 5 पाई +5 पाई। +5, +5 पाई। 5 पाई पर ओपन है, ठीक है। यस तो इधर कितने कंप्लीट रोटेशन आ रहे हैं? 4 4 कंप्लीट रोटेशन 4 कंप्लीट रोटेशन। cos अल्फा इक्वल टू -हाफ, कितने सॉल्यूशंस होता है एक कंप्लीट रोटेशन में? 1 2 cos थीटा इक्वल टू -हाफ, कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2 2 ना। 2, ठीक है। इसमें ये होगा 4 कंप्लीट रोटेशंस। और 8 तो सॉल्यूशन सर। कितना? 8 8 सॉल्यूशंस हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस समझा कि नहीं? एक केस में आपको क्या आ रहा है, -3 पाई से लेके 5 पाई, -3 पाई इधर से स्टार्ट होगा, ये टच करेगा, -3 पाई से लेके -2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इधर ओपन, ठीक है। ये आपका -2 पाई, नो, -3 पाई, ये आपका -2 पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, ये आपका 5 पाई, करेक्ट। cos थीटा कहाँ पे नेगेटिव होता है? सेकेंड और थर्ड थर्ड, ठीक है। कितने सॉल्यूशंस आया? 8 8 सॉल्यूशंस, इसका 8, इसका 16, टोटल 24 सॉल्यूशंस।
समझा? हाँ सर। सर हम्म वो जो आपने फर्स्ट वो किया था ना, इन दोनों जो इक्वेशंस के सेम सॉल्यूशंस नहीं है, कैसे चेक करना है वो एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? एक तो होता है आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन सेटअप मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालो, एक हाँ एक चेक करो, और उसमें पता चलेगा कि कितना कॉमन सॉल्यूशन आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ। यस सर। इफ cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ, देन cos 4x कितना होगा? यू नो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इफ यू कंसीडर 2x as थीटा, 4x 2 थीटा होगा। तो cos 4x you can write 2 cos square 2x minus 1. 2 cos square 1 by 2 cos square minus half का square minus 1 which is 1 by 2 minus 1. This is not equal to 0 क्योंकि cos 4x 0 दे रहा था ना। हाँ अच्छा, हाँ सर। तो इसका मतलब cos 2x जब माइनस हाफ होगा, cos 4x कभी जीरो नहीं 0 होगा। नहीं हो रहा है। इसका हाँ मतलब कॉमन हाँ सर। सॉल्यूशन आने का चांस नहीं। सपोज 0 होता तो डेफिनेट देयर आर सम कॉमन सॉल्यूशंस। यस सर, समझा। सर अगर 0 रहता तो कॉमन सॉल्यूशंस होते थे ना सर। कॉमन सॉल्यूशन होगा। और वो केस पर क्या होगा, किसका ज्यादा सॉल्यूशन होगा, 2x में कि 4x में? 4x में होगा ना 4x में ज्यादा सॉल्यूशन होगा, तो 4x का ही हम आंसर ले लेंगे। डायरेक्ट। हाँ, क्योंकि when cos 2x इक्वल टू 0, cos 4x सॉरी cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ आ रहा है, तो cos 4x सपोज 0 हो गया, इसका मतलब इसका जितने सारे सॉल्यूशंस है इसके अंदर है, इसका जितने सारे सॉल्यूशंस इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो कॉमन सॉल्यूशन इसका जितने सारे सॉल्यूशन इसके अंदर होगा ना, तो कॉमन तो वही सॉल्यूशन होगा। इसमें जो 8 सॉल्यूशन आया है ना, इसका जो 16 सॉल्यूशन हुआ, तो ये 8 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसके अंदर होगा। तो आप काउंट करोगे तो कितना सॉल्यूशन आपको मिलेगा? सपोज एक सेट में आपको मिल रहा है पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 पाई, लेटेस्ट है। और एक सेट में आपको मिल रहा है पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3। तो आप क्या कर रहे हो, सेट ए यूनियन सेट बी ना, हम लिखते हैं इधर सेट फर्स्ट सेट और सेकंड सेट। और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। ये दोनों में यूनियन कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना रहेगा दोनों सेट में? 4 रहेगा, क्योंकि इसका जो कॉमन सोल्यूशन था उसको तो हम डबल काउंट नहीं करेंगे ना। तो ए यूनियन बी क्या होगा, 5/3, 2 पाई बाई 3, 5/2 एंड 5। तो आज cos 2x इक्वल टू माइनस व्हेन cos 2x इज इक्वल टू माइनस हाफ, सपोज cos 4x 0 हो गया, इसका मतलब इसके जितने सारे सॉल्यूशन इसके अंदर है, तो इसका सॉल्यूशन को आप काउंट नहीं करेंगे। समझा कि नहीं? नहीं समझा? हाँ सर समझा। फाइंड जनरल सॉल्यूशन। थ्री tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 15 डिग्री। इसमें क्या हुआ, that implies tan theta plus 15 upon tan
थीटा माइनस 15 इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लाएंगे ना, उसके लिए कंडीशन नहीं रखेंगे। सब ये 0 होगा तो चलेगा, बट कोई डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर ला रहे हो, आपको कंडीशन रखना पड़ेगा। ठीक है, सही बात, फिर से बोली ना प्लीज। यहाँ पे जैसे मैंने ये टर्म को इधर लाया, हाँ डिनोमिनेटर कर दिया, तो डिनोमिनेटर में नॉन जीरो टर्म होता है, बट यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक्चुअली दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन नहीं रखना पड़ेगा कि थीटा माइनस tan ऑफ थीटा माइनस 15 डिग्री आपका 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, वो कंडीशन रखना नहीं पड़ेगा। हाँ बट यहाँ पे सपोज 1 प्लस tan x अपॉन साइन x इज इक्वल टू कॉस x, सपोज आप इसको ले रहे हो, न्यूमरेटर पर ले रहे हो, वो कंडीशन के साथ रखोगे कि साइन x इज नॉट इक्वल टू 0। मैं जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो कंडीशन रहना हाँ, पड़ेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन में डिनोमिनेटर जो रहेगा उसको नॉन जीरो रखना पड़ेगा, यस सर। कन्वर्टेड वाले को जरूरी नहीं। हाँ सर। तो इसको 3/1 कर देता हूँ। अब यूज कंपोनेंट ऑन डिविडेंड बोथ द साइड्स। ठीक है, यस यूज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस माइनस न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, नो ठीक था, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। माइनस डिनोमिनेटर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो भी करोगे आप दोनों साइड वही करना पड़ेगा, बट न्यूमरेटर बिगर टर्म है रहेगा। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 15 डिग्री प्लस tan थीटा माइनस 15 डिग्री अपॉन tan थीटा प्लस 15 डिग्री माइनस tan थीटा माइनस 15 डिग्री इक्वल टू 2। इज इक्वल टू 3 + 1 अपॉन 3 - 1 दैट इज 2, है ना। हाँ सर। tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b क्या होता है साइन साइन कॉस में, इनटू a प्लस b डिवाइडेड बाय साइन a माइनस साइन थीटा प्लस 15 प्लस b, अच्छा 2 थीटा साइन a प्लस b अपॉन साइन a माइनस साइन b। साइन a प्लस b आपको साइन 2 थीटा देगा, साइन a माइनस b आपको दे देगा 30 डिग्री, करेक्ट, इज इक्वल टू 2। दैट इंप्लाइज साइन 2 थीटा क्या हो गया, हाफ इंटू 2 1, तो आपका जनरल सोल्यूशन, तो 2 थीटा क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा क्या होता है पाई बाय 2। जनरल। अच्छा तो n हाँ, पर्टिकुलर बताया था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 2n -1, + 1 π/2 2n 2n + 1 into π/2, 2n + 1 into π/2 मतलब क्या होता है सर n पाई प्लस -1 रेज़ टू n पाई बाय सर y 2n एक्सिस + होता है, 1/2 पाई। तो y एक्सिस हो जाएगा। हाँ, y एक्सिस में होता है तो एक जगह होगा, एक इधर नहीं होता है ना, साइन थीटा थोड़ी 1 होता है। सर सर तो 4n + 1 upon π/2 यस, 4n + 1 into π/2 और 2n पाई प्लस π/2, तो याद रखो ये 2n पाई आपका सिर्फ इधर ही होता है, इधर नहीं होता है, ये होता है, तो दिस इज द 2n पाई प्लस π/2, तो थीटा क्या हो जाएगा n पाई प्लस π/4 π/4। नहीं, जिसने लिखा n पाई प्लस -1 टू दी पावर n इंटू π/4, नो क्या लिखे, वो तो n π/2 होगा। नहीं, कोई इसको इससे करेगा, इज इक्वल टू साइन π/2
दैट इम्प्लाइज 2 थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा करेंगे तो 2 थीटा होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n पाई बाय 2, तो थीटा हो जाएगा n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 टू दी पावर n पाई बाय 4। तो ये लिखो, नहीं तो ये लिखो, बहुत करेक्ट। आप खुद चेक कर सकते हो। n पाई प्लस पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है? n के जगह 0 डालेंगे तो क्या होगा? n के पाई बाय 1 डालेंगे तो पाई प्लस पाई बाय 4, 2 प्लस 1 डालेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 4, मतलब ये दो जगह मिला सोल्यूशन। ये चेक करो, n के जगह 0 डालो, कितना होगा? पाई बाय पाई बाय 4। 4 1 डालेंगे, पाई माइनस पाई बाय 4, अगेन वही, n के जगह 1 डालेंगे तो क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, फिर वही आ गया ना। तो n के जगह 0 डालो, 0 डालेंगे तो पाई बाय 4, n के जगह 1 डालो, क्या होगा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 विच इज अगेन पाई बाय 4, मतलब दोनों का सेम सोल्यूशन सेम है। इधर 1 डालेंगे, सॉरी 2 डालेंगे, कितना होगा? पाई प्लस पाई बाय 4, इधर मिला। 3 डालेंगे, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, ये 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, फिर इधर आ गया। तो ये सोल्यूशन जो है, ये सोल्यूशन वही है, एक दोनों सेम सोल्यूशन, लिखने का तरीका अलग होता है। समझा? तो क्या मिला था आपको आंसर? दिस इज करेक्ट। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसके जगह कुछ डाल सकते हैं? कुछ याद आ रहा है? कोई फॉर्मूला था? हाँ सर, आपने दिया था tan क्या था? सर याद नहीं आ रहा। सर मैंने तो साइन और कॉस में एक्सपैंड किया। सर सर इसमें पाई बाय 3 tan प्लस x, tan पाई बाय 3 माइनस x इज इक्वल टू tan 3x। यस सर। ठीक है, एलसीएम हो गया, tan x न्यूमरेटर हुआ 1 प्लस tan x tan 3x tan पाई बाय 3 प्लस x tan पाई बाय 3 माइनस x, मतलब tan थीटा tan 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू tan 60 डिग्री माइनस थीटा, 0 क्या होता है? tan 3 थीटा। tan 3 थीटा, तो tan 3x plus 1 became 0, that implies tan 3x equal to -1। ठीक है, इसमें एक बार चेक करो, इसका सोल्यूशन इसमें आ रहा है क्या? इफ tan x equal to 0, then tan 3x क्या होता है? tan 3x का फॉर्मूला क्या है? 3 प्लस 3 tan x माइनस tan tan क्यूब cube x x अपॉन 1 माइनस 3 tan 3 x tan स्क्वायर x, ये square 0 दे x देगा, tan x 0 ना, तो ये 0 0, ये 1 0 बाई 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब when tan 3x is equal to -1, when tan x equal to 0, tan 3x is not equal to -1। समझा? इसका मतलब इसका सॉल्यूशन इसमें नहीं होगा।
करेक्ट? आपका कंडीशन क्या था? 10x इज नॉट इक्वल 0। तो मैं 10x को 0 लेके चेक कर रहा हूं ये -1 आएगा कि नहीं आ रहा है। Whenever 10x equal to 0, tan 3x भी आपको 0 दे रहा है। इसका मतलब इसमें जो जितने सारे सॉल्यूशंस होंगे इसमें कोई भी सॉल्यूशन tan x को 0 कर नहीं पाएगा। You got my point? हाँ सर। तो अभी -1 की जगह क्या लिख सकते हैं? tan of what? 3 pi by 4. 3 pi by 4. 3 pi by 4 लिखो, -pi by 4 लिखो, तो tan theta equal tan alpha, तो 3x equal to n pi plus -1 to the power n into अल्फा। अब x मुझे चाहिए, तो x क्या होगा? सॉरी, नॉट -1 टू द पावर n, है ना? तो x क्या हो जाएगा? n pi by 3 plus pi by 4, और n belongs to integer. This is your solution. समझा ये? हाँ सर। तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 होमवर्क, ठीक है? और एक फॉर्मेट बताया नहीं, देखते हैं उसके ऊपर कितना क्वेश्चन है। आप करोगे तो पता चलेगा, ऐसा कर सकते हैं। Bye sir, thank you sir. बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, बाय sir. Thank you, sir. Bye sir, thank you. Thank you, sir. Bye. बाय।